Good afternoon, good evening. Hmm? Continue. यार बैकग्राउंड ना क्या ब्लूइश हो থাকে जो ठीक है দেখাইছে মই কিবা থিমটো সেইদিনাখন চেঞ্জ কৰিলোঁ হপফুলি হ'ব লাগে in the last class we solved illustration number 1 I guess, right? Okay, so illustration number 2. A company has two divisions, manufacturing and assembly. This is second illustration of transfer pricing, right? So at a normal value of 2,50,000 units of component YPY per year, production cost per unit are direct material 40, direct labor 20, variable factory overhead is 12, and fixed factory overhead is 42. The manufacturing division has been manufacturing and selling 2,50,000 components per year to outside buyers for rupees 136. However, the division can manufacture 3,50,000 components per year. The assembly division has been buying the components from outside suppliers for rupees 130. The assembly division has offered to purchase 90,000 components of YPY from manufacturing division at the rate of 104 per unit. Should the manager of electrical division accept the offer? Okay, will an internal transfer be of any benefit to the company? Okay, huh? What electrical division? Should the manager of the electrical division, okay, there are two division, manufacturing division is electrical division only, okay, same ही है, हाँ? नहीं, वही मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन मतलब इलेक्ट्रिकल डिवीजन वही है, और तो कुछ मीनिंग नहीं है ना इस चीज़ का, है ना? So let us frame the question first. This is illustration number 2 of transfer pricing. So what does the question say? There are two division, one is manufacturing division and another one is assembly division, right? Now the manufacturing division produces 2,50,000 units and sells it at rupees 136, right? बट इसका कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी कितना है? 3,50,000. Now assembly division requires how much? 95,000, right? 90,000 units. And otherwise they purchase it for rupees, from outsiders they purchase it for 136, right? Sorry, 100.
30. Now the assembly division has offered to purchase 90,000 components of YPY from the manufacturing division. So they want this 90,000 at the rate how much? 104. Right? So should we accept the offer? First of all, should we accept the offer or not? Yes or no? Why? Sorry? Please think again. Think once more whether we should transfer 90,000 units to assembly division or not. It is as simple as that. Think again. Dega. They have an additional capacity of 1 lakh. So whether they produce additional 1 lakh or not, it will have no impact on their sales. 136 का ऊपर कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, वो तो एज इट इज चलते रहेगा ना, ये तो एज इट इज चलते रहेगा चाहे आप 90,000 सप्लाई करो या नहीं करो. अगर 90,000 का ऊपर सप्लाई कर मतलब 1 लाख का ऊपर अगर सप्लाई करना है तब हम लोग सोचेंगे वो बेनिफिशियल है या नहीं है ना. अगर बेनिफिशियल ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि वो 104 में चाह रहा है जबकि हम सेल करते हैं 136. अगर मेरा कैपेसिटी अगर उतना होता नहीं तो उस केस में हम लोग देखते हैं कितना में ट्रांसफर करने से हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा. बट इन दिस केस इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हैज एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख, है ना. ठीक है. नाउ व्हाट सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? विल एन इंटरनल ट्रांसफर बी ऑफ एनी बेनिफिट टू द कंपनी? इंटरनल ट्रांसफर अगर 90,000 करते हैं, फर्स्ट पार्ट का मैं लिख देता हूँ. यस, द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन शुड ट्रांसफर 90,000 यूनिट्स टू एट असेंबली डिवीजन, है ना. एज it has an additional capacity of unutilized capacity of 1 lakh units, right? Now by transferring 90,000 units, how much profit should manufacturing division, how much profit will manufacturing division earn by transferring this 90,000 units? कितना प्रॉफिट अर्न करेगा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन? कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करने वाला है? कितना में ट्रांसफर करेगा? 104 में. कॉस्ट कितना आ रहा है? 114. Think again. 72. 70? 72. Yes. Variable cost. Only variable cost. Variable cost. Why? Because fixed cost is anyways, we are incurring the fixed cost anyways whether we produce 2,50,000 or whether we produce 3,40,000. So that fixed cost is irrelevant for this decision, right? So हम लोग सिर्फ क्या चार्ज करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट चार्ज करेंगे, है ना. मैंने क्या बताया था? अगर कैपेसिटी आपके पास एडिशनल है, आप कितना चार्ज करोगे? मार्जिनल कॉस्ट, है ना. उसके ऊपर प्रॉफिट मार्क करो या जो भी करो वो अलग चीज़ है, बट मिनिमम से मिनिमम आप क्या चार्ज करोगे? मार्जिनल कॉस्ट, इफ़ यू हैव एन एडिशनल कैपेसिटी. ठीक है. अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है देन इन एडिशन टू मार्जिनल कॉस्ट आप क्या चार्ज करोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉट फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
जो आप आउटसाइडर्स को सेल करके जितना प्रॉफिट कमा सकते थे वो भी आप ऐड करोगे, मार्कअप ऐड करोगे, है ना। कैसे पता चला, मतलब आपका 2.5 लाख यूनिट आप एग्जिस्टिंग आपका कस्टमर्स है, 2.5 लाख यूनिट परचेजर है, और आपका कैपेसिटी कितना है 350, एडिशनल कैपेसिटी कितना है 1 लाख। पानी पानी देखो, नहीं तो कनेक्ट ले लो। Okay, sorry. So how much contribution are we earning in this case? This much. The value is 2 lakh 28 lakh 80,000. So by transferring these 90,000 units, the total contribution that manufacturing division is earning is 28 lakh 80,000. Understood? Now how much the company will benefit from this transaction? कंपनी को कितना बेनिफिट होने वाला है, ये तो मैं मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का बताया सिर्फ, है ना। नाउ प्रॉफिट और सेविंग्स टू द कंपनी, प्रॉफिट बोलो या सेविंग्स बोल लो, टू द कंपनी। सेविंग्स कितना हो रहा है, अगर बाहर से परचेस करते तो कितना कितना करना, कितना से करना पड़ता 130। अभी कितना कॉस्ट बन रहा है मेरा, कितना कॉस्ट बन रहा है 104 और 72। कंपनी एज ए होल सोचो ना, ये वाला प्रॉफिट और सेविंग्स टू द कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं। कंपनी के लिए कितना कॉस्ट है, अगर बाहर से परचेस करता है तो कितना कितना में परचेस करता है 130। अभी कितना कॉस्ट बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने से 72 बन रहा है। सो दिस इज द सेविंग्स टू द कंपनी। कितना 52 20, राइट। बस इतना ही था क्वेश्चन में। समझ आया नहीं आया, कुछ नहीं, सिर्फ आपका कॉमन सेंस यूज़ करना है और कुछ नहीं। एक तो हम लोग को सोचना है डिवीजन वाइज, डिवीजन के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, और एक कंपनी के लिए। जब कंपनी के लिए सोचेंगे हम लोग ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे कंपनी में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट, a manufacturing company has two divisions X and Y. Division X is mainly engaged in the production of an electronic device, and division Y packs and labels the product and sells it in the market. Division X has supplied 25,000 units of product per month to Y for packaging and labeling. Division X incurs 16 as the variable cost for the product and fixed cost of 8,40,000 per year. ठीक है। Investment in fixed asset is 9,60,000. The division plans to have 12% return on fixed asset as normal profits. Division Y incurs 10 per product as variable expenses for packaging and marketing. Find the transfer price per unit of the product that division X can charge for transfer to Y. कितना प्राइस चार्ज करेगा एक्स वाई को। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ डिवीजन वाई इफ इट कैन सेल द प्रोडक्ट फॉर 80 per unit.
if division Y can sell only 15,000 units of the product per month and ask division X to supply only 15,000 units, what will be the effect of the transfer? चलो एक एक करके हम लोग करते हैं, ठीक है. दो डिवीजन है, डिवीजन X एंड डिवीजन Y, ठीक है. डिवीजन X सप्लाइज कितना 25,000 यूनिट्स, पर मंथ टू Y फॉर पैकेजिंग एंड लेवलिंग. डिवीजन X का जो वेरिएबल कॉस्ट है कितना है 16 पर यूनिट, और डिवीजन Y का वेरिएबल कॉस्ट कितना है ₹10 पर यूनिट, है ना. नाउ डिवीजन Y को और एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी डिवीजन X को और एक चीज चाहिए, एक फिक्स कॉस्ट चाहिए, है ना. कितना फिक्स कॉस्ट आ रहा है 9 लाख और 8,40,000, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए 9,60,000 का ऊपर 12%, इतना चाहिए. $1,02,100. ये सारा ऐड करने के बाद जो बनेगा ये ट्रांसफर प्राइस बनेगा, है ना. इसमें मैं प्लस क्या करूँगा, ये ₹10, ये मेरा बनेगा टोटल कॉस्ट नहीं, सेल्स प्राइस ही बोल लो. क्यों सेल्स प्राइस मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं कैलकुलेट कर लिया, मतलब एक तरीका से बोल सकते हो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट. डिवीजन वाई का अपना खुद का प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ पैकेजिंग करता है. पैकेजिंग के लिए आप एक्स्ट्रा करके क्या प्रॉफिट चार्ज करोगे, है ना. सो नाउ इन द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट, ठीक है. तो आप टोटल कॉस्ट निकालो पहले. वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कितना यूनिट के लिए 2,50,000 यूनिट्स के लिए एट द रेट ₹16, 25 सॉरी 25,000 यूनिट्स एट द रेट 16 कितना आ रहा है 4 लाख, ठीक है. नाउ ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्स हो गया. फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है 8,40,000. हाँ, so return on investment is how much 960 का 12%, 115,200. so this will be the transfer price, है ना. कितना आ रहा है कितना आ रहा है 57, क्या 13 लाख, ये सॉरी 40 लाख, कितना है 25,000 था या 2,50,000 था, 25,000 यूनिट्स था. ओके एक यहाँ पे गलती हुआ है. सर यहाँ पे तो पर यूनिट बोला है ना ट्रांसफर प्राइस. हाँ हाँ सर यहाँ पे तो ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट निकालना पड़ेगा हाँ सर. वो निकालेंगे, बट एक गलती हुआ है. क्या गलती हुआ है, यस दिस वाज पर मंथ, ये पर ईयर, ये भी पर ईयर.
So better we convert this 25,000 into per year, मतलब 3 lakhs per year, है ना? तो ये मेरा चेंज हो जाएगा. ये हो जाएगा 48 lakhs. 57, 55, 200. So transfer price per unit will be 57, 55, 200 divided by 3 lakh units, right? $184 per unit. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है? व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ डिवीजन वाई इफ इट कैन सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट एट ₹80 per unit. What will be the profit for division y? डिवीजन y का सिंपली ये तो निकाल लोगे. कितना है बताओ, कैलकुलेटर मार के बताओ, कैलकुलेटर मार के बताओ. 50.816. Any other answers? Any other answers? सेलिंग प्राइस कितना है? 80. उसका अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना है? y का 10 माइनस कर दो, कितना बना? 70. और क्या कॉस्ट है? जो ट्रांसफर प्राइस है वो कॉस्ट नहीं है. ट्रांसफर प्राइस कितना है? 19.184. सो 80 से क्या क्या माइनस करोगे? 80 से 19.184 माइनस करोगे और ₹10 माइनस करोगे, है ना? सो सेलिंग प्राइस इज ₹80. इसे माइनस करेंगे ट्रांसफर प्राइस 19.184. ठीक है. इसे माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ y जो कि है ₹10. सो प्रॉफिट ऑफ डिवीजन y कितना आ रहा है? 50.816. क्या ये कंपनी का भी प्रॉफिट है? कंपनी का प्रॉफिट कितना है? हाँ हाँ, कंपनी का प्रॉफिट कितना है? पक्का वही होगा? पक्का श्योर? इतना ही होगा कंपनी का प्रॉफिट? नहीं, 23.792. हाँ 23.792 per unit. वेट, लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट. कितना बोला? कंपनी का प्रॉफिट बता रहा हूँ. 23.792 23. हाउ पर यूनिट का बोलो सर. हाउ कैसे कैसे? वांट टू नो. और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी ऐड किया मैंने. हाँ लेकिन 23 कैसे बन जाएगा? मुझे समझ नहीं आया. यू गॉट द पॉइंट बट 23 कैसे आ जाएगा? यहाँ पे तो मेरा चेंज होके कुछ और बनेगा ना. 57 से मैं अगर 115 माइनस करूँ उतना तो डिफरेंस नहीं होगा. वो माइनस करना पड़ेगा. उतना नहीं होगा. पॉइंट में कुछ डेसिमल्स में आएगा. समझ रहे हो क्या बोला उसने? नहीं
यहाँ पे भी प्रॉफिट ऐड करके रखा हूँ ना, ये भी तो कंपनी का प्रॉफिट है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इतना है, ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट, और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है ये है, इतना ही कॉस्ट है। ये वाला को क्यों इंक्लूड करना है? ट्रांसफर प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। तो आप जो प्रॉफिट, ये इस कॉस्ट सोच के माइनस करो ना, इसमें तो प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। एक्चुअल कॉस्ट कितना है कंपनी के लिए? 19.184 है या उससे कम है? कम है ना, यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडेड है। कितना कम है? इसको डिवाइड करो कितना से, कितना यूनिट्स है? 3 लाख यूनिट्स। जीरो 384। तो ये 19.184 में इतना अमाउंट घुसा हुआ है कि नहीं? तो ये डिवीजन वाई का प्रॉफिट अगर है, कंपनी का कितना होगा? कंपनी कितना में सेल करे? 80 में, ठीक है। कंपनी का कॉस्ट कितना है? 19.184 से आप माइनस करोगे 0.384, ठीक है। कितना आ रहा है? 18.8। और जो डिवीजन वाई का वेरिएबल कॉस्ट है 10, है ना? कितना? हाँ, तो प्रॉफिट कितना? 51.2। मैंने 25,000 कॉस्ट यूनिट बता पकड़ दिया लिया था था फिर शायद ना। से। ओके, नहीं 25,000 यूनिट पकड़ लिया था 3 लाख के जगह फिर से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आरओआई इज व्हाट? आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न चाहिए, वो एक मेजर होता है प्रॉफिट का। एक बेंचमार्क बना दिया कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। नथिंग बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉफिट ही तो है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें आप रिटर्न चाह रहे हो, मतलब क्या चाह रहे हो? इन अ वे प्रॉफिट चाह रहे हो, है ना? ट्रांसफर प्राइस में इसीलिए ऐड किया है बिकॉज वो डिवीजन वाई का इन्वेस्टमेंट है, डिवीजन एक्स का इन्वेस्टमेंट। डिवीजन वाई का अपना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैकेजिंग और लेबलिंग में क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए? डिवीजन वाइज वो बाइफर्केट कर रहा है कंपनी। हाँ, वैसा हो सकता है। अभी मान लो मल्टीपल, अभी तो इसमें 2 डिवीजन है, मान लो मल्टीपल डिवीजन है, सबका अपना अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हो सकता है वो लेयर वाइज आपका प्रॉफिट बढ़ते जाए। ये क्यों ज़रूरत है मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डिवीजन वाई, डिवीजन एक्स और डिवीजन वाई, राइट। अभी डिवीजन एक्स कैन ट्रांसफर टू वाई और इट कैन सेल टू आउटसाइडर। डिवीजन वाई बोलते हैं मैं आउटसाइडर को भी सेल कर सकता हूं और आई कैन ट्रांसफर टू डिवीजन वाई, ठीक है। अभी वो दो बार कैलकुलेशन करेगा क्या? डिवीजन वाई में ट्रांसफर करने के लिए मुझे अलग से कैलकुलेशन करना है, आउटसाइडर्स के लिए अलग से कैलकुलेशन करना है। इसलिए उसने क्या बोला डायरेक्टली, मैं आउटसाइडर्स में 10% लेता हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तुम भी मुझे सेम प्राइस दे दो। समझ रहे हो? अगर इसका इंडिपेंडेंट कैपेसिटी नहीं है आउटसाइडर्स को सेल करने की, ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट ही अराइज नहीं होता। ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट इसलिए अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन टू सेल इट टू आउटसाइडर्स। अदरवाइज कुछ सेंस नहीं है। अदरवाइज वही प्रोसेस कॉस्टिंग में जाओ, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ मार्कअप नहीं होता, डायरेक्ट जो प्रोसेस कॉस्ट है वो नेक्स्ट प्रोसेस का ओपनिंग कॉस्ट बन जाता है। लेकिन ये मार्कअप का कॉस्ट तभी आता है when division has individual capacity to sell it to the outsiders. Understood? Next, थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में क्या पूछा है? If division Y can sell only 15,000 units of product per month, ask division Y and ask division X to supply only 15,000 units, what will be the effect of the transfer price and the profit of the division? अभी टोटल यूनिट कितना बन जाएगा? कितना? 15,000 इंटू 12 कितना आ रहा है? 1,80,000 1,80,000 यूनिट्स। अभी ऊपर में जो हम लोग कैलकुलेशन किया था ना,
कुछ सिमिलर कैलकुलेशन ही करना है, बट हाँ सिमिलर कैलकुलेशन ही करना है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट निकाला था ना, ये डिवीजन एक्स का प्रॉफिट निकाला था, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कितना यूनिट्स के लिए निकाला था, 3 लाख यूनिट्स के लिए। अभी कितना के लिए निकालना है, 1,80,000। सो क्या क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 16, देन फिक्स्ड कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिक्स कॉस्ट कितना था, 8,40,000 एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 960 का ऊपर 12% कितना आ रहा था, 115,200। इसमें कितना आ रहा है, कितना, 11,35,200। 28,80,000। तो मैं ही मार लेता हूँ, 2 आंसर आ रहे हैं, 28,80,000। सो टोटल कितना बना, 38,35,200। इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो जाएगा वाई का, कितना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वाई, 180 मल्टीप्लाइड बाय 10, 18 लाख 56 35,200। ठीक है, पर यूनिट कितना बनेगा, डिवाइड बाय 180, है ना, 31.31। ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट है ना। अगर सेल प्राइस आपका 80 रुपीज़ है, सेल प्राइस 80 है, कॉस्ट कितना है 31.31। सो प्रॉफिट ऑफ डिवीजन वाई कितना होगा, 48.69। कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। सिंपली क्या करना है, इसको 115,200 को डिवाइड करना है 180 से, कितना आ रहा है, 0.64। तो इससे आप 0.64 अगर माइनस कर देते हो तो आपका निकल जाएगा कंपनी का प्रॉफिट, है ना, 48.05। क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं हम लोग को, जितना पूछा उतना ही बनाएंगे। ठीक है, हाँ तो कैसे हो, क्या हो गया, वायरल, ओके। so can we move on to the next question। देखो सिमिलर ही कुछ जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सिमिलर चीज़ ही कर रहे हैं हम लोग, कुछ नया कुछ नहीं कर रहे, है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, या तो वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, उस पर मार्कअप लगा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, है ना।
सिर्फ क्वेश्चन में पूछने का तरीका कुछ अलग अलग है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। Division Z of Starex Limited is a profit center which produces 4 products A, B, C and D. Each product is sold in external market also. Following data are available for the period: market price, variable cost, labor hours, labor cost नहीं दिया हुआ, labor hours दिया हुआ है ना, labor hours required per unit, ये रुपीज में नहीं होना चाहिए, गलत है शायद, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ठीक है, ये रुपीज में नहीं होगा। प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन वाई बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज, प्रोडक्ट डी किसको चाहिए, डिवीजन वाई कहाँ से आ गया, ओके, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 15,000 यूनिट्स ऑफ डी। The maximum sales, external sales ये सारे हैं। Division Y can purchase the same product at the market price of rupees 500 per unit from outside instead of receiving the transfer, मतलब बाहर से भी खरीद सकता है। What should be the transfer price for each unit of 15,000 units of D if the total labor hours available, देखो इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, सिर्फ डी चाहिए, फिर इतना सारा देने का मतलब क्या हुआ, द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज डी, है ना, फिर इतना सारा ए बी सी देने का मतलब क्या बना, लेबर आवर्स इज द लिमिटिंग फैक्टर एंड व्हेन आई से लिमिटिंग फैक्टर देन यू शुड रिकॉल मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना, दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है इसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग एज वेल एज ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन, पानी आने ले, तो हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर प्राइस निकालना है ना, ट्रांसफर प्राइस निकालना है, चलो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, no? So there are 4 products, product A, B, C and D, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर है, सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, है ना, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाल के हमें रैंकिंग करना पड़ेगा, है ना। सो मार्केट प्राइस इज हाउ मच, या सेल्स बोल लो, सेल्स इज 600, 580, 560 and 510 and variable cost is 520, 360 and 335. Now tell me what is the contribution, 80, 180, 200 and इसका कितना आ रहा है, 175, ठीक है, दिस इज द टोटल कंट्रीब्यूशन। नाउ लेबर आवर कितना चाहिए, लेबर आवर पर यूनिट 3, 4, 2 and 3, सो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना निकलेगा,
इसमें 45, 100 एंड इसमें 58.33। सो रैंकिंग क्या होगा अपना, ये एक नंबर होगा है ना, फिर ये 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो मैक्सिमम सेल्स कितना है, मैक्सिमम सेल्स पहले आप कौन सा सेल करोगे, सी पहले सेल करोगे है ना। सी सेल करने का साथ साथ लेबर आवर कितना है, लेबर आवर कितना लगेगा, 27,600, 13,800 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर सेकंड आप चाहोगे कि ये वाला पूरा सेल करो, इसका मैक्सिमम डिमांड कितना है, 9,600। तो कितना आवर्स चाहिए होगा प्रोड्यूस करने के लिए, 28,800। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 1,20,000 आवर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए है ना, उसका अंदर ही हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगा ये सेल करने का, क्या ये सेल पूरा हो पाएगा, इसका टोटल कितना है 15,000 यूनिट्स हो जाएगा इसका। बाकी कितना आवर्स बचा है, कितना आवर्स बचा है हमारे पास, हाँ कितना बचा है पक्का, 3,600 आवर्स। तो कितना यूनिट सेल कर पाएंगे 3,600 में, कुछ डाउट होने से बताना, कुछ भी डाउट हो। हाउ, ये तो आवर्स में है ना, ये आवर्स में है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने में 3 आवर चाहिए, तो कितना यूनिट प्रोड्यूस कर पाओगे, 1200 मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाओगे है ना, ठीक है। यहां तक बन गया। अभी हमें क्या करना है, हम लोग का पर्पस क्या है, टू सप्लाई 15,000 यूनिट्स ऑफ डी है ना। डी कितना आवर्स चाहिए, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितना है 15,000 इंटू कितना आवर्स चाहिए था डी में, 3 आवर्स करके चाहिए, मतलब 45,000 आवर्स। ये आवर्स कहाँ से लाओगे आप, आपके पास तो टोटल कितना आवर है, 25,000 आवर है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कौन सा सेक्रीफाइस करना चाहोगे, कोई तो प्रोडक्ट, किसी का प्रोडक्शन तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, कौन सा सेक्रीफाइस करोगे, वाई, एवरीवन एग्रीज, ए को सेक्रीफाइस करना है, वाई, बिकॉज कंट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंकिंग में मेरा सबसे लो में आ रहा है, पहले तो जिससे सबसे कम प्रॉफिट आ रहा है उसको सेक्रीफाइस करूंगा ना, है ना। इसमें कितना आवर्स है 3,600 आवर्स, लेकिन फिर भी मेरा कवर नहीं हो रहा, मुझे कितना चाहिए 45,000 आवर्स, और कितना आवर्स चाहिए 41,400 आवर्स चाहिए है ना। वो फिर कहाँ से लूंगा मैं, कहाँ से, बी से, ठीक है। सो टू सप्लाई 15,000 units, total hours required is 45,000 hours. These 45,000 hours can be made by sacrificing लैंग्वेज क्या होगा, चलो दिस 15,000 यूनिट्स का लिख देता हूँ ना, दिस 15,000 टू सप्लाई 15,000 यूनिट्स, टोटल आवर रिक्वायर्ड इज 45,000 आवर्स, राइट।
So this can be achieved by sacrificing production of A and B. A का कितना आवर्स सेक्रीफाइस करोगे, B का कितना आवर्स सेक्रीफाइस करोगे? A का तो आप फुल सेक्रीफाइस कर दोगे 3600, B का कितना सेक्रीफाइस करोगे? 41,400. ठीक है, ठीक है. नाउ प्राइस, ट्रांसफर प्राइस कितना होने वाला है अभी? ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट आप पूरा चार्ज करोगे, वेरिएबल कॉस्ट फुल चार्ज करना है ना. ट्रांसफर प्राइस में हम लोग प्रॉफिट नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे लिए क्या है? ए और बी जो सेक्रीफाइस करे, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना. तो ट्रांसफर प्राइस में पहले तो मैं 335 फुल आएगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट, इसमें लिख देता हूँ. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डी पूरा आएगा, ऑफ डी प्लस क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डी कितना है? 335. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? आप कितना आवर सेक्रीफाइस कर रहे हो? 3600 आवर्स. कंट्रीब्यूशन कितना? आवरली कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर आवर यहाँ निकाले थे ना, 26.67. सिमिलरली इसका कितना आवर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोग? 41,400. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो कंट्रीब्यूशन है कितना है? 45. ठीक है, ये टोटल हो गया. इसको डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए 15,000. ठीक है. कितना आ रहा है? मेरा कैलकुलेटर बेकार है. सेम फंक्शन में प्लस करना आता है? दो आता है? हाँ, एम प्लस यूज करना आता है? नहीं आता है? करो, मैं सिखाता हूँ. 3600 मल्टीप्लाई करो 26.67 से, एम प्लस दबाओ. हाँ, 41,400 मल्टीप्लाई करो 45 से, वापस एम प्लस दबाओ. ठीक है, वापस से करते हैं. 3600 मल्टीप्लाइड बाय 26.67, एम प्लस दबाओ. फिर नेक्स्ट क्या है? 41,400 मल्टीप्लाइड बाय 45, वापस एम प्लस दबाओ, एमआरसी दबाओ. आ गया. इसको डिवाइड करो 15,000 से, कितना आ रहा है? इसको प्लस करो 335 से, 465.6. दिस इज आंसर. ठीक, रिकैप कर लेते हैं क्विकली. हाँ, क्या हम लोगों ने किया है इसमें? ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ साथ मार्जिनल कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड था, बिकॉज हम लोग जब ये लाइन पढ़ा ना, हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है. लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि 120 है, तो मेरा दिमाग में एक आइडिया बैठ गया, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है. ठीक है, तो हम लोग पहले क्या किया? हम लोग सबका इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन निकाला एंड कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाला फॉर द सेक ऑफ रैंकिंग, क्योंकि हमें कुछ प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करके ही सप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो दैट्स वाई कौन सा प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करेंगे उसके लिए हमें रैंकिंग करना पड़ा. ठीक है, तो रैंकिंग में हम लोग देखा कि ए और बी लोएस्ट आ रहा है,
तो ए और बी से हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे। कितना मैक्सिमम सेक्रीफाइस कर सकते हैं? इससे मैक्सिमम 3600 सेक्रीफाइस कर सकते हैं एंड इससे मैक्सिमम 41400 सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन, इसका वेरिएबल कॉस्ट तो लिया ही लिया, उसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको भी हम लोग ऐड कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? जो ये प्रोडक्ट सेल करके हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, वही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, हाँ अगर उससे कवर हो जाता, कवरेज भी देखना है ना। अगर प्रोडक्ट डी से ही आपका, मान लो प्रोडक्ट डी लास्ट आता है इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात आता या नहीं आता, तब भी हम लोग को देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट डी अपना ही प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करके सप्लाई कर पा रहा है कि नहीं। उसमें भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? प्रोडक्ट डी का तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा ही ना, ये इतना एटलीस्ट इतना तो आएगा ना इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि आप वो बाहर में सेल नहीं करके आप खुद का डिपार्टमेंट को सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब आता है व्हेन यू हैव एन ओपन मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग इट टू द सेपरेट डिवीजन। ट्रांसफर प्राइस क्या समझाना है? ये वाला, ये जो निकाला है, देखो एक तो ये वेरिएबल कॉस्ट डी का है। क्वेश्चन ये है कि आप डी को जो ट्रांसफर करोगे कितना प्राइस में ट्रांसफर करोगे, खुद का ही डिपार्टमेंट है उसको कितना प्राइस में ट्रांसफर करोगे। मिनिमम से मिनिमम आप क्या लोगे? वेरिएबल कॉस्ट, वो तो लेना ही लेना है। ठीक है, और क्योंकि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो आप चाहोगे कि जो सेक्रीफाइस करके मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है वो भी मैं रिकवर करूं। तो अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो रहा है? ये 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मैं दूसरा ए का और बी का प्रोडक्शन रोक रहा हूँ। कितना का रोक रहा हूँ? टोटल 45,000 आवर्स। हाँ, कंफ्यूज मत होना, यूनिट्स और आवर्स में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, अगर इसको मैं यूनिट्स में कन्वर्ट करके भी मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ। इसको अगर मैं यूनिट्स में कन्वर्ट करूँ, कितना यूनिट्स बनेगा? 1200 यूनिट्स, और इसका कितना बनेगा? 41,400 डिवाइडेड बाय 4, 10,350। तो इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा बनता, 335 प्लस कितना? 1200 इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 80 प्लस 10,350, इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 180। आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, बेसिकली मैं ये आवर्स लॉस मतलब कवर करने के लिए कितना प्रोडक्शन सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, वही है अल्टीमेटली। वेदर यू से प्रोडक्शन या आप आवरली हिसाब से भी देखो, एक ही बात है। ठीक है, आपका उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। टाइम है अपने पास? नहीं है। So this is all about what? ट्रांसफर प्राइसिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, वो हम अपना 6 बजे तक क्लास है। सॉरी, तो लाए फाइव मिनट्स का ब्रेक लेते हैं।
ठीक है. So we are going to start a
न्यू टॉपिक, क्या चीज़ के लिए, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया बता। अच्छा शाहरुख आर्यन खान बोलो भाई, नया मूवी आ रहा है उसका, मूवी या क्या शो आ रहा है ना शायद। ओके क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, बताओ क्या टॉपिक है बुक में नेक्स्ट, वही करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना है, ग्रुप 1 में जाना पड़ेगा फिर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाँ कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। हाँ कोई लो, थैंक यू। नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट का बोल रहे हो, इंडेक्स देखना पड़ेगा, इंडेक्स का हिसाब से आई डोंट थिंक दिखा सकते। हाँ कोई लो कोई लो, ओके डाउनलोड हुआ कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड फेवरेट चैप्टर है क्या इसमें, लेकिन फाइनल में आता है। हाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं फिर से बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्या हो गया, गायब हो गया कैसे, क्या हो गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सीखना है, चलो इतना मेहनत बेकार हो गया, ठीक है। इसमें कहां से स्टार्ट करें, किसी को आइडिया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों चाहिए, क्या है बैकग्राउंड, क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कुछ भी, एनीथिंग। एनीथिंग, एनी आइडिया, थापा बोलो, क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पता नहीं। हम लोग जैसे आप लोगों को पास पास मार्क है ना एग्जाम के लिए, वो क्या है, स्टैंडर्ड है। अगर आप लोग पास करते हो दैट इज योर गोइंग अबव द स्टैंडर्ड, एंड इफ यू आर नॉट पासिंग, इफ यू आर नॉट अचीविंग द पास मार्क, मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो है उससे एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। हाँ उसमें इधर आपका फेवर में आ सकता है या अगेंस्ट में आ सकता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल या एडवर्स। अगर फेवर में आया तो फेवरेबल, एडवर्स में आया तो अगेंस्ट में आया तो एडवर्स, ठीक है। बीकॉम में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो प्रॉफिट, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से कंपेयर होता है, प्रॉफिट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट किया मैंने, सपोज 10 रुपये का प्रॉफिट होगा या 10 लाख का प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कहाँ से आता है, सेल से आएगा, सेल से और कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट ही तो प्रॉफिट है ना। मैं मान लेता हूं, काम करता हूं, इसको 2 रुपीज कर देता हूं, ठीक है। 2 रुपये का प्रॉफिट है, मैं मान लेता हूं सेल्स मेरा 10 रुपीज है और कॉस्ट है 8 रुपीज, ठीक है।
ये मेरा स्टैंडर्ड, मैंने स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। अगेन कॉस्ट का डिफरेंट कैटेगरीज है, क्या क्या कॉस्ट हो सकता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स में भी आपका दो कैटेगरी हो सकता है। मैंने देखा कि मटेरियल मेरा मान लो 4 है, 2 है और 2 है, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी हो सकता है, क्या क्या, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। जैसे इसका मान लेते हो 1 रुपीज़ 1 रुपीज़। लेकिन क्या ये मेरा स्टैंडर्ड सिनेरियो, मैंने बजट फोरकास्ट किया कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आइडियल सिनेरियो है। लेकिन कभी आइडियल सिनेरियो काम करता है, नहीं करता है। मैंने देखा ये प्रॉफिट 2 रुपये का जगह 1.9 हो गया, 1.5 हो गया, ठीक है। एक्चुअल में मैंने देखा प्रॉफिट कम हो गया। उसका मैं ड्रिल डाउन करूँगा किस रीजन से कम हो गया, सेल्स के वजह से कम हुआ या कॉस्ट के वजह से कम हुआ, ठीक है। फिर अगर कॉस्ट के वजह से कम हुआ, कौन से में कम हुआ, मटेरियल में कम हुआ, लेबर में या ओवरहेड में, किस रीजन से कम हुआ, ठीक है। मटेरियल में भी अगेन कैटेगरीज होता है, क्या प्राइस की वजह से कम हुआ, मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, या मटेरियल का कंजम्पशन मतलब यूजेज, आपको जितना यूज करना था उतना यूज नहीं किया, उससे ज्यादा यूज किया, यूजेज की वजह से वेरिएशन आया, ठीक है। सिमिलरली लेबर का भी, लेबर का रेट के वजह से वेरिएशन आया, क्या लेबर प्राइस मतलब लेबर पेमेंट मैंने ज़्यादा किया है, जितना मैंने एस्टिमेट किया था कि मैं इस रेट से पेमेंट करूँगा, क्या उससे ज़्यादा पेमेंट किया है, ठीक है। या फिर लेबर का एफिशिएंसी घट गया है, ठीक है, या फिर लेबर का एफिशिएंसी घट गया है, ठीक है। सिमिलरली ओवरहेड्स में भी रीजन अलग अलग हो सकता है। ये सारा आपका कोर्स में कवर्ड है अभी सारा, ये सारा में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सारा हमें सीखना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट है फिक्स्ड ओवरहेड और एक मटेरियल, ये दोनों थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट आज किसी से भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अदर को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला का पहले एक एग्जांपल का थ्रू हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद अ कंसेप्ट एग्जांपल। मान लेता हूँ मेरा आउटपुट है से 2000 यूनिट्स, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैंने सोचा कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है। 2000 यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा और मटेरियल चाहिए एट द रेट 2 kg पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट के लिए 2 kg चाहिए, तो उस हिसाब से टोटल कितना kg चाहिए, 4000 kg, ठीक है। और जो मटेरियल का रेट होगा, मटेरियल जो मैं परचेस करूंगा उसका होगा पर kg रेट ₹12, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में मैंने देखा, जब एक्चुअल फिगर्स आया मेरे पास, तब मैंने देखा मेरा आउटपुट जो है, आउटपुट कितना है 4000 यूनिट्स, ठीक है। और जो मटेरियल एक्चुअल में मैंने कंजम्पशन किया है, मटेरियल कंज्यूम किया है या प्रोक्योर किया है, वो है 8500 kg। और जो रेट है रेट है 10 पर kg, ठीक है। मैंने क्या एस्टिमेट किया था कि मैं 2000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मैंने 4000 यूनिट प्रोड्यूस किया। सो
एक चीज़ बताओ, दो फिगर्स अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें सेम लेवल पे होना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप 10th या 12th का एग्जाम दे रहे हो, उसका फिगर्स को आप बीकॉम का लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते हो, या बीकॉम का फिगर्स आप अभी सीएमए या सीएस का फिगर्स से कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो वी हैव टू बी एट द सेम लेवल। यहाँ पे जैसे 2000 यूनिट्स था ना, बट यहाँ पे कितना हम लोग एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4000 यूनिट्स। सो फॉर कंपेयरिंग बोथ हमें एक सेम लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें 2000 यूनिट्स हम लोग एस्टिमेट किया था, अभी कितना यूनिट्स आ गया, 4000 यूनिट्स। 4000 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड कितना हो जाएगा, मटेरियल कितना हो जाएगा, @2 पर kg 8000 kg चाहिए होगा, ठीक है? रेट तो वही रहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है? अभी बताओ इसमें टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड हम का हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, हाँ 8000 kgs और रेट कितना है, ₹12। तो टोटल कॉस्ट बन रहा है मेरा 96,000, बट एक्चुअल में टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है, 8500 kgs मल्टीप्लाइड बाय ₹10, 85,000 है कि नहीं? ठीक है, मैंने सोचा था 96,000, बट एक्चुअल में कॉस्ट कितना आया, 85,000, ठीक है? सो ये अच्छा है या खराब है, अच्छा है या खराब है, अच्छा है, ठीक है? सो इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब कॉस्ट में आपका कितना वेरिएंस आया है, कितना आया है, 96,000 माइनस 85,000, 10,000 आपका अच्छा है, अच्छा आने से फेवर में आने से फेवरेबल लिखेंगे, ठीक है? सॉरी 11,000, ठीक है, अंडरस्टूड? फिर से हम लोग एनालाइज करते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो स्पेस रख देता हूं मैं। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना निकला, 96,000 माइनस 85,000, 11,000 फेवरेबल ना। क्वेश्चन इज, ये जो कॉस्ट में डिफरेंस आया किस वजह से आया, किस वजह से आया? प्राइस हम लोग एस्टिमेट किया था 12, लेकिन एक्चुअल में कितना आया, 10। सो प्राइस की वजह से आया। सो नेक्स्ट वेरिएंस क्या बनता है, मटेरियल प्राइस, प्राइस वेरिएंस, ठीक है? बारह माइनस कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, 12 हमने एस्टिमेट किया था, एक्चुअल में कितना आया, 10, ठीक है? कितने क्वांटिटी के लिए, कितने क्वांटिटी के लिए, 4000 यूनिट्स के लिए, एक्चुअल यूनिट्स के लिए। सो इट इज रुपीज कितना आ रहा है, 8,000, फेवरेबल और एडवर्स, आपने 12 एस्टिमेट किया था, लेकिन एक्चुअल में आपका कॉस्ट कम ही लगा है, सो इट इज फेवरेबल, है ना? प्लस माइनस का सोचना नहीं है, ठीक है? लॉजिकली सोचना है। हो सकता है मैं एक्चुअल प्राइस ज़्यादा पहले लिख दूँ, ये बाद में लिख दूँ तो माइनस में आ जाए, लेकिन लॉजिकली हमें सोचना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लॉजिकली सोचना है, ठीक है? वेदर इट इज इन आवर फेवर और अगेंस्ट इट।
और एक रीजन से डिफरेंस आया है, क्या रीजन से आया है? हाँ, कंज्यूम्ड कितना? हमने एस्टिमेट किया था 8,000, मतलब हमने एस्टिमेट किया था 2 पर केजी, लेकिन एक्चुअल में 2 पर केजी हुआ नहीं, ज़्यादा हुआ है ना। हमने एज्यूम किया था, एस्टिमेट किया था 8,000 केजी लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा? 8,500। सो मटेरियल का यूजेज वेरी कर रहा है ना, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। हमने एस्टिमेट किया था कितना? 8,000 किया था, लेकिन ज़्यादा लग गया, ठीक है। अभी इसमें रेट क्या लेना है? देखो, हमेशा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट होता है ना। इसमें से रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी किया था, इसमें क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट क्या लेना है? स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल रेट लेना है? 12 लेना है या 10 लेना है? क्यों? एक्चुअल वाला यहाँ पे ऑलरेडी आपने टेक केयर कर लिया 10 का, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे 10 बार खरीदने गया, क्या 10 बार सेम प्राइस में मिलेगा आपको? नहीं। तो इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड रेट लेके चलना है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड रेट ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक्चुअल रेट सिर्फ प्राइस वेरिएंस में लेंगे और बाकी जगह में स्टैंडर्ड रेट ही लेना है, याद रखना। So 500 into 12 is 6,000, ना? Whether it is favorable or adverse? Against or adverse? क्यों? क्योंकि आपने एस्टिमेट किया था 8,000 यूनिट लगेगा, बट एक्चुअल में ज्यादा यूनिट लग गया है ना। सो इट इज अगेंस्ट अस, ठीक है। कुछ तो गलत हुआ है ना, ये यूनिट्स में नहीं होगा ना, ये हम लोग जब मटेरियल का निकाल रहे हैं, मटेरियल का क्वांटिटी लिखेंगे ना कि यूनिट्स। मटेरियल का क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना था? 8,000, 8,500 केजी। $17,000, ठीक है। ये यूजेज का फर्दर सब डिवीजन होता है। यूजेज वेरिएंस का 2 पार्ट होता है, ठीक है। हैंड देखो, यूजेज का 2 पार्ट होता है। क्या क्या होता है? यील्ड एंड मिक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या यील्ड एंड मिक्स का बात आएगा? इसको तो क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें कितना केजीज चाहिए था हमें? 8,000 केजी में। मान ले तो उसमें 2 कंपोनेंट है, ए है और बी है, ठीक है। 2 कंपोनेंट चाहिए, ए और बी दोनों चाहिए 1:1 रेशियो में, ठीक है। 1:1 मतलब ए का कितना केजी चाहिए? 4,000 केजीज एंड बी का 4,000 केजीज, और रेट दोनों का 12-12 है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने देखा, मेरा कितना लगा? 8,500 लगा। 8,500 में अगर मान लो 1:1 रेशियो में अगर होता, कितना करके लगता 8,500 यूनिट का? 4250। लेकिन एक्चुअल में मैंने देखा कि उतना लगा नहीं, 4,000 लगा, और इसमें बी में 4,500 लगा, ठीक है। और दोनों का रेट सेम है, ठीक है। अंडरस्टूड?
ये देखो यहाँ पे आपका जो मटेरियल का मिक्सचर था 1:1 होना था, लेकिन मटेरियल का मिक्सचर आपका चेंज हो गया। जो जिस प्रोपोर्शन में आपको मिक्स करना था उस प्रोपोर्शन में आपने मिक्स नहीं किया, आपने कुछ और प्रोपोर्शन में मिक्स किया है। सो उसी के वजह से एक और वेरिएंस आता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, इसमें आपको कितना करके मिक्स करना था? 4000, ए का 4000 मिक्स करना था, आपने कितना किया? 4000 ही किया है, तो इसमें तो कुछ इशू नहीं है। ठीक है, रेट क्या लेना है? हमेशा मैंने बताया कि स्टैंडर्ड रेट लेना है। ठीक है, बी का केस में 4000 करना था, आपने कितना करके किया? 4500। ठीक है, @12। इसमें तो नील आया, इसमें 6000 एडवर्स और एडवर्स नहीं, इसमें एक काम करता हूँ, एक टेबल का थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक टेबल हम लोग बनाएंगे, उससे पूरा एक कंसेप्ट एक बार में समझ आ जाएगा। एक टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, टेबल आप याद रखना, कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ए है और काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं, देन बढ़िया से समझ आएगा। एक टेबल बनाएंगे, टेबल से सारा सॉल्व हो जाएगा अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 या 3 खोल लो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 खोल लो। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा मटेरियल वेरिएंस का, अगर आया तो हमें एक टेबल बनाना है, उस टेबल से सारा आंसर्स निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले एक चीज समझा देता हूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ये टोटल कॉस्ट वेरिएंस है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। ठीक है, ये दोनों हमेशा टोटल करोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगेन यूजेज वेरिएंस को हम लोग सब डिवाइड करते हैं मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस में। ये दोनों भी सब टोटल करोगे तो ये आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, टोटल कॉस्ट वेरिएंस 2 टाइप का है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज। यूजेज का सब डिवीजन है मिक्स और यील्ड। क्या है मिक्स, क्या है यील्ड, इस क्वेश्चन का थ्रू हम लोग समझते हैं। सर ये पीडीएफ डाला हुआ है क्या ग्रुप में? डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा पीडीएफ। हाँ, SK Limited operates a system of standard costing throughout its division. The company produces an alloy by mixing and processing 3 different materials, P, Q and R। 3 मटेरियल है और इसका मटेरियल का रेशियो क्या है? स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेशियोज है। लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 5% ऑफ इनपुट। यहाँ पे देखो और एक चीज कवर हो गया, लॉस। और एक चीज कवर हो गया जो कि है लॉस। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2013 5,80,000 kg of finished alloy was obtained from input as per the details given below। ये एक्चुअल कंजम्पशन है। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल का थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन को इधर ला सकता है क्या कैसे भी? कुछ ऑप्शन है?
कैसे करते हैं। क्या हो गया? कर सकते हैं ना ऐसे। हाँ, so this is the question, illustration number 3 of standard costing। एक हम लोग टेबल बनाएंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड में इधर क्या क्या हम लोग का पास मटेरियल है, P, Q एंड R, ठीक है। और एक बनाएंगे एक्चुअल, इसमें आएगा यूनिट्स, रेट और टोटल, यूनिट्स, रेट और टोटल, ठीक है। स्टैंडर्ड देखो रेशियो में गिवन है, टोटल में गिवन है नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले एक्चुअल पुट करते हैं। 240, ठीक है ना, 240 P का लगा, 250 Q का एंड 110 लगा R का, ठीक है। टोटल कितना मटेरियल्स लगा? टोटल कितना लगा? 6 लाख। लेकिन मेरा आउटपुट कितना है? आउटपुट कितना मिला मुझे? 5,80,000 ही मिला। आउटपुट कितना मिला? 5,80,000। बाकी जो ये बचा है ये क्या है? नॉर्मल लॉस है ना। नॉर्मल लॉस कितना? 20,000 यूनिट्स, ठीक है। नाउ वही प्रीवियस एग्जांपल जो किया था मैंने, क्या बताया था आपको? कंपेयर करने के लिए सेम बेस में आना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड भी सेम बेस में होना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने एक्चुअल निकाला कितना यूनिट्स के लिए, मेरा फाइनल प्रोडक्शन क्या है? 5,80,000। आउटपुट के लिए आपको स्टैंडर्ड निकालना है। आपका जो टोटल आउटपुट है, जहां पे भी लॉस दिखे ना, याद रखना हमें यहां से स्टार्ट करना है, 580 से स्टार्ट करना है। आउटपुट मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। नॉर्मल लॉस कितना होगा? 5% आपका लॉस है, नॉर्मल लॉस है। किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर। इनपुट कितना होगा? 580 अगर आउटपुट है, इनपुट कितना होगा? सिंपली आप इसको अगर 95% से डिवाइड कर दो, 580 को अगर 95% से डिवाइड कर दो, आपका इनपुट मिल जाएगा, है ना। ठीक है। ऐसे अगर समझ नहीं आता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका इनपुट 100 है तो आउटपुट कितना निकल रहा है? 95, या आप लॉस बोल लो, नॉर्मल लॉस कितना निकल रहा है? 5 नहीं होगा, 95 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज आउटपुट इज गिवन, ठीक है। आपका 580 अगर आउटपुट है तो आपका इनपुट कितना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इनपुट निकल गया, ठीक है। तो इस हिसाब से नॉर्मल लॉस कितना बन रहा है? 3526, ठीक है। तो इस ये जो इनपुट है, किस रेशियो में, स्टैंडर्ड में किस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे? 2:2:1 में, है ना। तो 6,10526 डिवाइडेड बाय 5,
करने से कितना आएगा 122,105.2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 244,210.4 244,210.4। क्लियर यहाँ तक? रेट क्या है? 40, 60 एंड 85, 40, 60 एंड 85। ठीक है, इसका रेट क्या है एक्चुअल का? 38, 59, 88। ठीक है, देखो कहीं पे भी ऐसे नहीं समझाएगा, आपको फॉर्मूला डाल देगा, फॉर्मूला से आप करते रहो, फिर आपका दिमाग खुद खराब होगा। सो प्लीज स्टे फोकस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कहीं पे आपको ऐसा इस तरीका से नहीं समझाएगा, मैं बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूला का चक्कर में जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ नहीं समझ आए बार बार बोलो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। सो टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं, कितना है 97,68,416। $1465 2624। $10378942। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है? 34। ये कुछ डेसिमल की वजह से थोड़ा इधर उधर आ रहा है वैल्यू। ठीक है, ये एक्चुअली राउंड ऑफ हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना टॉलरेबल है, आपको एग्जाम में भी उतना टॉलरेट कर लेगा एग्जामिनर। ठीक है, इसके साथ साथ हमें और एक टेबल बनाना पड़ेगा और एक कॉलम बनाना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल इनपुट। जो आपका एक्चुअल इनपुट है 6 लाख, इसके लिए आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा वो भी हमें निकालना है, यूनिट रेट टोटल। तो यहाँ पे मैं, वहां पे मैंने आउटपुट को फ्रीज किया था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट को फ्रीज कर रहा हूँ। इनपुट मेरा कितना है 6 लाख, इसको 2:2:1 में डिवाइड करो, कितना बनता है 240 एंड 120। नॉर्मल लॉस कितना होगा 5%, 30,000 मतलब 570। ठीक है, रेट तो स्टैंडर्ड रेट वही रहेगा 40, 60 एंड 85। 96 lakhs, 60, 120 into 85, 102,000,000,000। कितना आ रहा है 342,000,000। ठीक है, अभी बस हो गया, मेरा सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा। फर्स्ट मुझे क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसके लिए क्या करना है, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करना है। ठीक है,
स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 34 79,982 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है 33,55,0,0,0 कितना आ रहा है 55 1249982 फेवरेबल है या एडवर्स है? स्टैंडर्ड मैंने 34 lakhs या जो भी है 3,50 lakhs एस्टिमेट किया था 48 lakhs, बट एक्चुअल में मेरा उससे कम आया कि नहीं, तो फेवरेबल है, ठीक है। अब इसको फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे। सेकंड वेरिएंस क्या आएगा प्राइस, है ना। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। इसे हमें इंडिविजुअली करना है पी क्यू आर को लेके अलग अलग। सो पी क्यू आर, क्योंकि सबका रेट अलग अलग है, इस कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस से हमें एक्चुअल प्राइस माइनस करना है, ठीक है। मतलब ये प्राइस से आप ये प्राइस माइनस करो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस में हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो पी का स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 40, क्यू का 60 एंड आर का 85। इसे क्या माइनस करना है, एक्चुअल प्राइस। क्या है एक्चुअल प्राइस 38, 59, 88। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 240, 250, 110। कितना 4,80,000, 2,50,000, 3,30,000। अभी फेवरेबल है एडवर्स बताओ, पहला वाला फेवरेबल है या एडवर्स है, सेकंड वाला फेवरेबल है, थर्ड एडवर्स। किसी को कुछ डाउट है इसमें? इसके बाद क्या आने वाला है, यूसेज, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, है ना। मटेरियल यूसेज बोल लो या क्वांटिटी बोल लो, हाँ ठीक है, कोई नहीं, हम लोग ई पहले निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, अगेन पी क्यू आर अलग अलग निकालेंगे। क्या चीज माइनस करना है यूसेज में, क्वांटिटी माइनस करना है, क्वांटिटी में डिफरेंस देखना है ना। कौन सा क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। हाँ हाँ करेंगे, हाँ सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सा लोगे, ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है 244, 210.4 माइनस
240, इसे मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से, है ना। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है इसका 40, अगेन 244 210.4, इसमें 122,105.2 माइनस करना है 250 एंड 100, मल्टीप्लाई करना है किससे, स्टैंडर्ड प्राइस। ना 347 376 1028942, ठीक है। फर्स्ट वाला फेवरेबल है, ये एडवर्स है, फेवरेबल है। सेकंड वन एडवर्स, थर्ड वन फेवरेबल। तो वह टोटल भी निकाल लेते, इसका कितना है टोटल बताओ, इसका भी टोटल बताओ। ये 4 lakhs फेवरेबल, कितना आ रहा है इसका 15, कितना आएगा 6168416 प्लस 1028942 माइनस 376 8499.82 फेवरेबल या एडवर्स, फेवरेबल है ना। नहीं समझ आया, वो प्लस माइनस है ना, फेवरेबल एडवर्स, ये प्लस माइनस सोच लो, प्लस फेवरेबल ऐड करो या एडवर्स वाला माइनस करो, ठीक है। हाँ यील्ड समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, तभी मैं ये टेबल बनाया, टेबल से समझाता हूँ। अभी ये दोनों टोटल करने से ये आ रहा है, प्राइस और यूजेज वाला टोटल करने से थोड़ा प्लस माइनस वाला फंडा समझ आया ना, नहीं आया, आ गया ना। ये दोनों प्लस करने से आ रहा है, तो यहाँ तक हम लोग का आंसर सही है। मतलब अभी जो दो चीज है मिक्स और यील्ड वेरिएंस, ये किसका पार्ट है, यूजेज का पार्ट है, ठीक है। मिक्स क्या बोलता है कि आपको जिस प्रोपोर्शन में मिक्स करना था उस प्रोपोर्शन में आपने मिक्स नहीं किया, और यील्ड क्या बोलता है कि जितना में आपका उतना प्रोडक्शन आना चाहिए था उतना में नहीं आया, मतलब आपका एफिशिएंसी कुछ मशीन में कुछ खराबी है। यील्ड मतलब क्या है, प्रोडक्शन। मान लो यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ आपको 580 यूज करने के लिए, 580 प्रोडक्शन के लिए जितना चाहिए था, प्रोडक्ट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स जितना चाहिए था उससे ज्यादा आपने यूज किया है, ठीक है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बेसिकली, आपने जितना इनपुट डाला आउटपुट कितना निकला, आपने एस्टिमेट किया था 5% लॉस होगा, आपका कुछ अलग लॉस हुआ है, यील्ड में चेंज आ गया है, ठीक है। और मिक्स क्या बोलता है, मिक्स आपका जितना रेशियो में मिक्स करना था उस रेशियो में आपने मिक्स नहीं करके, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कहीं ना कहीं मिक्स वेरिएंस किस चीज का बात बोल रहा है, मिक्स वेरिएंस बात कर रहा है ये इस चीज का, मतलब आपका इनपुट अगर सही होता, उतना इनपुट अगर इक्वल होता तो आपका मिक्सचर कैसा होता,
और आपने अभी कितना मिक्सचर यूज किया है, तो मैं मिक्स वेरिएंस में ये दोनों कंपेयर कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, समझ रहे हो? नहीं, अगेन तीन चीज है मेरे पास, एक 6, 10, 5 to 6 है, और एक है 6 lakhs, ठीक है, और एक 6 lakhs का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है। तीन चीज है मेरे पास। ये 6, 10 और 6 लाख ये दोनों स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये 6, 10 और ये 6 लाख, ये दोनों का जो डिफरेंस है ये बताता है कि आपको यूज करना था 6, 10, लेकिन आपने 6 लाख ही यूज किया। फॉरगेट अबाउट फेवरेबल एडवर्स, ये उल्टा भी सिनेरियो हो सकता है, ये एडवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे फेवरेबल सिनेरियो है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आपको 6, 10 यूज करना था, लेकिन आपने 6 लाख में ही उतना प्रोडक्ट बना दिया। ये क्या सिग्निफाई करता है? एफिशिएंसी सिग्निफाई करता है कि नहीं, कि मैंने एफिशिएंटली मतलब कम यूनिट में ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया, कम इनपुट में ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया, मतलब प्रोडक्टिविटी मेरा ज्यादा है, मेरा यील्ड ज्यादा है। उतना ही जितना मुझे 6, 10 में मैंने एस्टिमेट किया था कि 580 आउटपुट होगा, मैंने 6 लाख यूनिट में ही बना दिया। समझ आया? तो वो क्या सिग्निफाई करता है? मेरा प्रोडक्टिविटी, मेरा यील्ड सिग्निफाई करता है कि मैंने एफिशिएंटली काम किया है, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड का रेशियो है और एक्चुअल का जो रेशियो है, ये क्या सिग्निफाई करता है? मिक्स, किस रेशियो में मैंने मिक्स किया, यानी कि आपका जो इसका और इसका डिफरेंस है, स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस है, वो क्या सिग्निफाई करेगा? वो प्रोडक्टिविटी सिग्निफाई करेगा, यील्ड सिग्निफाई करेगा, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है, ये क्या सिग्निफाई करेगा? मिक्स, ठीक है। अंडरस्टूड? इसलिए मैं टेबल से थोड़ा समझा रहा हूं। स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस है वो सिग्निफाई करता है यील्ड, और एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस है वो सिग्निफाई करता है मिक्स, ठीक है। चलो अभी निकालते हैं मिक्स। मिक्स में मैंने क्या बताया? रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। PQR, ठीक है। क्या है? 240 यूज करना था पहला वाला में, यूज किया कितना? 240 ही यूज किया, और मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट लेना है, ठीक है। सेकंड वाला में कितना लेना था? 240, लेकिन यूज किया कितना? 250, ठीक है। थर्ड वाला में 120 करना था, लेकिन एक्चुअल में कितना यूज किया? 110 मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड 85, कितना आ रहा है? पहले तो नील आएगा, सेकंड वाला में 6 लाख नहीं 10, हाँ 6 लाख ना, 6 लाख। थर्ड वाला में 8,50,000। फेवरेबल है ये एडवर्स है? इसमें ज्यादा यूज कर लिया ना, तो ये एडवर्स है, और ये वाला फेवरेबल। टोटल में 2,50,000 फेवरेबल है, ठीक है। डी में हम लोग क्या निकालेंगे? यील्ड वेरिएंस निकालेंगे, है ना। यील्ड वेरिएंस में मैंने क्या बताया? जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसको आप कंपेयर करोगे, है ना। देखो हम लोग फॉर्मूला याद नहीं रख रहे, हम लोग टेबल याद रख रहे हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है?
244,210, 244,210.4 एंड 122,105.2। इसे माइनस करेंगे, ये वाला ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ था ना कहीं पे, ये वाला ही है अल्टीमेटली टेबल पे। 240 हाँ 240 तो लिखा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है ना, मल्टीप्लाई करना है 40, 60 एंड 85। कितना आ रहा है? वन 168,416 कितना 25 2622 178,942। मैं फिगर्स लिखने के बाद फिर बाद में दिमाग लगाता हूँ कि एडवर्स है या फेवरेबल है। भाई बताओ पहला वाला एडवर्स है या फेवरेबल है? मैं प्लस माइनस सोच के बता रहे हो या कुछ और लॉजिक सोच के बता रहे हो? इसमें ये सोचो कि स्टैंडर्ड आपने सोचा था 244 में उतना यूनिट प्रोड्यूस होगा, लेकिन मेरा कम ही यूनिट लग गया, 240 ही लग गया, क्योंकि दोनों में स्टैंडर्ड आप सोचोगे, सब में स्टैंडर्ड पहले लगाया, इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड बाद में लगाया, वो कंफ्यूजन में मत जाओ, लॉजिक सोचो उसका पीछे, ठीक है? ये भी फेवरेबल। कितना आ रहा है? ठीक है, अभी ये दोनों टोटल करने से वो आना चाहिए, ये आना चाहिए कि नहीं? हाँ आ रहा है ऑलमोस्ट, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, उतना टॉलरेबल है, ठीक है, उतना टॉलरेबल है। तो ठीक है, तो वो जो टेबल दिखाया था मैंने, टोटल कॉस्ट वेरिएंस सीक्वेंस जो बना था वो सारा मैच कर रहा है कि नहीं? वो वाला रिकंसिलिएशन अगर बनाने दिया जस्ट इन केस, वैसे वो टेबल बना के दिखा देना, ठीक है, या चार्ट बना के दिखा देना। कहाँ चला जा रहा है? ये वाला टेबल बना के दिखा देना, मतलब चार्ट, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसको हम लोग दो पार्ट में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज या क्वांटिटी बोल लो, ठीक है। इसका फर्दर सब डिवाइड होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। फिगर्स लिख के ऐसा रिकंसाइल करके दिखा देना, जस्ट इन केस पूछा जाए क्वेश्चन में। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हम लोगों ने क्या किया। पहले हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड निकाला है, स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। फिर एक्चुअल जो दिया हुआ है उसको टेबुलेट किया, और एक चीज क्या निकाला, रिवाइज स्टैंडर्ड। रिवाइज स्टैंडर्ड किस बेसिस पे निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। एक बार आउटपुट का बेसिस पे निकाला, आउटपुट को फ्रीज करके सारा चीज निकाला। एक बार इनपुट को फ्रीज करके सारा चीज निकाला। फिर उसके बाद तो काम एकदम इजी हो गया। ये टोटल कॉस्ट माइनस किया तो मुझे प्राइस कॉस्ट वेरिएंस मिल गया, टोटल वेरिएंस, ठीक है। सेकंड थिंग, प्राइस वेरिएंस के लिए इससे ये माइनस किया, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड, यूजेज वेरिएंस में क्या किया हमने, यूजेज का डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। फोर्थ, मिक्स वेरिएंस में हमने क्या किया है, मिक्स वेरिएंस ने हमने कंपेयर किया ये दोनों को, एक्चुअल को और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को। और फिफ्थ में क्या किया, यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड को रिवाइज स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, ठीक है।
ये टेबल बनाने से काम इजी हो रहा है कि नहीं? ये कहीं पे नहीं सिखाएगा, वो मोस्टली फॉर्मूला का तरीका से सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे टेबल बना लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा मटेरियल वेरिएंस का। ग्रुप 1 का टाइम में ऐसे करवाया था क्या? हाँ, कौन सा चार्ट? अच्छा, नहीं उसमें तो डिटेल में नहीं, वो चार्ट जो पीडीएफ है ना उसमें मज़ा आएगा आपको ये करने में, इसमें तो उतना समझ नहीं आएगा। ये तो मैं फॉर्मूला भी लिख दिया, बट फॉर्मूला का चक्कर में मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें फॉर्मूला का चक्कर में मत जाओ, वो टेबल बनाओ, टेबल से सॉल्व करो। ठीक है, ये करने में मज़ा आएगा, लेकिन ये वाला फिक्स ओवरहेड ये अभी सेकंड ग्रुप में ये करने में मज़ा आएगा, एकदम बढ़िया से करेंगे। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारा फॉर्मूलाज है, कैसे क्या करना है। ये भी एक चार्ट बनाएंगे, ऐसे फिगर्स डालेंगे, फिर कैलकुलेशन इजीली निकल जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखो, क्लास तो अभी ख़त्म करना ही है, बट ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, देखो एकदम सिमिलर है। सारा पैटर्न अगर मटेरियल वेरिएंस का आया ना, यही क्वेश्चन आएगा, फिगर्स इधर उधर कर देगा, बाकी आपका क्वेश्चन यही है। हाँ, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाँ, ये जितना भी मैं आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करवा रहा हूँ, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और रिसेंट पैटर्न्स, रिसेंट क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं ना, सारा वेरिएंस क्वेश्चन में डाल रहे हैं ओवरऑल। उसमें मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, ओवरहेड्स भी होगा। ईजियर है कंपेरेटिवली, उतना डीप में नहीं जाना है हर एक वेरिएंस में, इजीली भी हो जाता है, लेकिन सारा ओवरऑल वेरिएंस आ जाता है इसमें, तो इसलिए आपको सारा सीखना है। क्या आइडल टाइम? ओके, ठीक है, वो भी करेंगे। आइडल टाइम बेसिकली मटेरियल का साथ आप अगर कंपेयर करो तो ये और ये का, इस चीज़ का डिफरेंस है, मतलब सॉरी, ये नॉर्मल लॉस और इसका डिफरेंस है आइडल टाइम। मतलब अगर मटेरियल का साथ आप कंपेयर करें, क्योंकि सिमिलर ही अल्टीमेटली दोनों चीज़ सिमिलर ही है, उसमें आइडल टाइम एक एक्स्ट्रा आ जाता है कि नहीं? वो नॉर्मल लॉस जो आइडल टाइम होता है उसका डिफरेंस की वजह से आता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मैं सोच के आया था सिर्फ आज ट्रांस